Hello all. Today we are going to start a new topic that is called PDA, Push Down Automata. As we are able to see from this diagram, we do have in this diagram a input tape which is having blocks where the input elements are written like say AAA and so on. There is a finite control. This is a pointer which is called read pointer because it can read only, it cannot write anything. This pointer is moving in forward direction only. It cannot come back and it has to go block by block as we do study into the finite automata also. But what is the difference between finite automata and push down automata? It is this input tape and this pointer and the movement is same, but we do have extra stack is called memory element. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हमें कोई चीज़ याद रखनी है तो हम इस टैग को यूज़ करते हैं, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा को यूज़ करते हैं. ऐसे वो सारे क्वेश्चन जिसमें हमें कोई चीज़ याद रखनी है, वी नीड टू रिमेंबर समथिंग, वी कैन नॉट यूज़ फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू इट, वी ओनली यूज़ push down automata. This is a general diagram of PDA. Now we'll moving to the mathematical definition, the formal definition of PDA. PDA is defined as a collection of 7 tuples: Q, sigma, tau. This is a new symbol called tau, delta, Q naught, Z, and F. You must be familiar with the few symbols into it. For example, Q is a set of states, sigma is a set of input symbols, Q naught is the initial state, F is a set of final states, and push down automata can have. Now we'll be talking about 3 symbols which will be new to you. Number 1, Z. Z is a special symbol called initial stack symbol. It is a stack symbol presented into the stack. It is the end of the stack. Whenever we find the end of the stack, we found Z into it. मतलब जब भी हमें Z मिलेगा, इसका क्या मतलब होगा कि हमारा stack जो है वो खाली हो चुका है. Next, so Z is the initial stack symbol. Next we'll be moving to tau. Tau is a finite set of stack symbols. मतलब जिस तरह से हमारे पास ये जो सिग्मा है, समेशन है, दैट इज़ अ सेट ऑफ इनपुट सिम्बल्स. सिमिलरली इस स्टैक में जो भी हम सिम्बल्स रखेंगे, ऑल द सिम्बल्स विच आर गोइंग टू पुट इनटू द स्टैक आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बल tau, finite set of stack symbols. Okay, we'll be moving ahead. We can say that Z is presented into stack, so we can say that this Z belongs to tau. Q naught is a initial state. We can say that this Q naught belongs to the capital Q. This F is what? Is again states. This F belongs to the Q, subset of a Q, not belongs to. There are many states which can be termed as a final one. That is why we are writing down F is a subset of Q. Now, we'll be moving to the left with this delta, which is most important. This delta is called transition symbol, and the transition into the PDA shows as it is a mathematical function of Q cross sigma cross tau implies Q cross tau asterisk. What it means? The current state, current input symbol and the current top of the stack element. हम किस स्टेट पे काम कर रहे हैं, हमारा क्या इनपुट सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास स्टैक में सबसे पहले क्या एलिमेंट है, इन तीनों चीज़ों से मिलके हमें क्या मिलता है, Q क्रॉस टाउ एस्ट्रिक. Q मतलब द नेक्स्ट स्टेट, नई स्टेट क्या आने वाली है. टाउ एस्ट्रिक मतलब अभी जो टॉप ऑफ द स्टैक जो पहले कुछ भी था, स्टैक में जो भी एलिमेंट था उसमें चेंजेस हो गए, वो क्या हो गया, तो उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं टाउ एस्ट्रिक से. Why I am writing down asterisk? Because there are multiple options can be possible here. That is why I am using tau asterisk. I am again repeating current state, current input symbol, the top of the stack. All three collaboratively tell us which would be the new state or the next state and which would be the next top of the stack. Okay, that is the transition symbol on which the PDA works. And again, as I told you earlier, whenever we need to remember something, हमें जब भी कुछ याद रखना होता है किसी क्वेश्चन के लिए, तो उसमें हम PDA यूज़ करते हैं. We cannot use finite automata because finite automata do not contain any memory element where we can save something. Here in the diagram, are we able to see we do have a stack because we are able to memorize something into it. जो भी चीज़ें हमें याद रखनी है वो हम कहाँ पे स्टैक में पुश करते चले जाएंगे. अब इसको आगे फर्दर देखते हैं काम कैसे करता है. ये तो हमने इसकी सिर्फ डेफिनेशंस देखी. दैट इज़ अ जनरल डायग्राम, दैट इज़ अ मैथमेटिकल डेफिनेशन. नाउ वी मूविंग हेड. या सी, we can have 3 types of moves into the PDA stack.
जैसा आपने स्टैक में अभी अभी तक देखा है, आपको पता है कि स्टैक में हम एलिमेंट्स को या तो पुश कर सकते हैं या फिर पॉप कर सकते हैं. हियर वी कैन ऑल्सो हैव नो चेंज, मतलब ना तो हम पुश कर रहे हैं ना पॉप कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नो चेंज कहेंगे. The three possible moves are there into the stack, and how do we write down in the mathematically? That is, for example, first of all we'll talking about push. Push move is written as transition symbol, state in alphabet and the stack symbol. इनसे हमें क्या मिलता है, दो नई चीज़ें मिलती हैं. Let me write down again how the transition symbol works. We have, हम किस स्टेट पे काम कर रहे हैं, हमें क्या इनपुट सिंबल मिल रहा है, हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है. इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आने वाली है और नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक क्या आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी आर वर्किंग ऑन स्टेट नंबर Q1 फॉर एग्जाम्पल, and the input symbol is for example A, and from the stack we'll be getting Z. अगर स्टैक में कुछ नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, Z. मतलब हम इसको पढ़ेंगे कैसे कि हमारे पास स्टेट क्या है Q1, इनपुट सिंबल क्या है A, स्टैक में क्या है Z. इससे हमें क्या मिलेगा, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग द नेक्स्ट स्टेट इज Q डैश, एंड इफ आई एम राइटिंग डाउन दिस वे, व्हाट इट मीन्स, सी आई एम रीडिंग इट अगेन. इस तरह के मूव को हम कैसे पढ़ते हैं कि हम किस स्टेट पे काम कर रहे थे, Q1 पे, इनपुट सिंबल क्या था A, हमें स्टैक से क्या मिल रहा है, Z. तो अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, Q डैश. Q डैश मतलब Q डैश इज अ न्यू स्टेट एंड हियर इट बिकम्स AZ. इसका क्या मतलब हुआ, पहले जो स्टैक में Z था अब उसमें हमने A को भी पुश कर दिया. दिस इज कॉल्ड पुश मूव. Okay, the symbol we are studying from here, the symbol we are getting from here, we are pushing into the stack. Earlier stack has Z only and the A is the input symbol. Now it becomes AZ. We are pushing A over Z. That is how we write a push move. Okay, I'm taking one more example. Okay, what it means, we are working on Q2 state, input symbol is B, stack is A. First symbol is always state, second symbol is always input symbol, third symbol is always top of the stack. अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ओके, व्हाट इट मीन्स, हम Q2 स्टेट पे काम कर रहे थे, हमें इनपुट सिंबल मिला था B और हम स्टैक से क्या मिल रहा था A. तो अब हम क्या कर रहे हैं, Q2 BA. स्टेट अभी Q2 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, हो भी सकता है पर अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं हुआ. और B किसके ऊपर पुश हो गया, A के ऊपर. For example, see, check it out from here. Let's say this is an input tape having A. This is a stack having Z. Here it is a pointer. We'll move working on a Q node state. Let's say हम Q node state पे काम कर रहे हैं. इनपुट टेप से क्या पढ़ रहे हैं, A. स्टैक से हमें क्या मिल रहा है, Z. और हमने क्या करना है, A को Z के ऊपर पुश करना है. तो what we do write down, हम किस स्टेट पे काम कर रहे थे, Q नोट पे. इनपुट से हमें क्या मिल रहा था, A. स्टैक से हमें क्या मिल रहा था, Z. तो हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई वांट टू पुश द A ओवर Z. तो मैथमेटिकली आई कैन राइट डाउन Q नॉट A Z इज टू Q नॉट A Z. सिंपली A को Z के साथ लिख देना है विदाउट एनी कॉमा. तो दिस इज कॉल्ड पुश मूव. ओके, सिमिलरली लेट्स से दिस इज B. अब ये जो A कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब हम यहाँ से B पढ़ रहे हैं, इस B को भी मुझे क्या करना है, पुश करना है. तो व्हाट आई राइट डाउन, Q नॉट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इनपुट से B. स्टैक से क्या मिलेगा अभी, A, बिकॉज नया टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया, A हो गया. व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू बी पुश B इनटू A. व्हाट आई नीड टू राइट डाउन, Q नॉट BA. सी, अभी हम ये सीख रहे हैं कि पुश मूव कैसे लिखते हैं. स्टेट कैसे बदलती है नहीं बदलती है वो हम बाद में चेक करेंगे. सिमिलरली द सेकेंड मूव इज पॉप मूव. पॉप मतलब टू डिलीट सम एलिमेंट आउट ऑफ इट. मैथमेटिकली, फॉर एग्जाम्पल, बिफोर गोइंग मैथमेटिकली, लेट्स से दिस इज अ स्टैक, आई वॉन्ट टू डिलीट A फ्रॉम हियर. तो इसको हम ऐसा बाहर निकालना चाह रहे हैं. ठीक है, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, से दिस वे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें ये कुछ ऐसा दिया गया, ट्रांजिशन सिंबल Q A Z नॉट. व्हाट इट मीन्स कि हमारे पास स्टेट क्या है Q, हम क्या सिंबल पढ़ रहे हैं इनपुट टेप से A.
स्टैक से क्या मिल रहा है, जेड नॉट। अब हमने क्या कर दिया, क्यू नॉट नल। जब भी हम लास्ट में नल लिख देते हैं, नल का मतलब ही क्या है कि हम पॉप कर रहे हैं। पॉप किसको कर रहे हैं, जो भी पहले स्टैक में था। स्टैक में क्या था, जेड नॉट, तो हमने जेड नॉट को क्या कर दिया, पॉप कर दिया। सिमिलरली हियर if I want to pop A, so what I need to write down, I'm writing down here Q नॉट। लेट्स से हमें इनपुट टैब से क्या मिल रहा है, अभी B मिल रहा है, स्टैक से क्या मिल रहा है, A, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, A था। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको पॉप करना चाह रहे हैं। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट स्टेट इज Q नॉट एंड द नल सिंबल। जैसे ही नल लिखते हैं इट मीन्स वी आर पॉपिंग दिस टॉप ऑफ द स्टैक। पहले टॉप ऑफ द स्टैक ए था, अब उसकी जगह नल आ गया, इसका मतलब ए को हमने बाहर निकाल लिया। दैट इज हाउ वी राइट डाउन मैथमेटिकली। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड मूव इज नो चेंज। नो चेंज मतलब वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी चेंज इन टू द स्टैक, मतलब ना तो हम पुश कर रहे हैं ना पॉप कर रहे हैं। हाउ डू वी राइट इट डाउन, क्यू नॉट ए जेड नॉट, क्यू नॉट जेड नॉट, मतलब पहले भी टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, जेड नॉट था, अभी भी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, जेड नॉट है। इसका मतलब क्या है कि जेड में, सॉरी स्टैक में कोई चेंज नहीं हुआ। हियर इनटू द पॉप मूव, पहले टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, जेड नॉट, बट अभी हमने क्या कर दिया, नल। इसका मतलब हमने क्या किया, जेड नॉट को डिलीट कर दिया, ठीक है। हियर पुश मूव, पहले टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, जेड नॉट था, अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए जेड नॉट। इसका मतलब वी आर पुशिंग ए ओवर द जेड नॉट। दैट इज ऑल अबाउट हाउ डू वी राइट डाउन मूव्स इनटू द PDA. And the question you'll be getting like this: design a PDA for a language L is equals to a raised to power n, b raised to power n, n is greater than equals to 0. And this question we are going to solve into the tomorrow's class. Here the question says a raised to power n is b raised to power n. इसका क्या मतलब हुआ कि जितने a हैं उतने ही b होने चाहिए। सारे ए पहले आएंगे, उसके बाद बी आएंगे। अगर 3 ए है तो बी की संख्या भी 3 ही होनी चाहिए। इफ़ अ स्ट्रिंग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी, ओनली देन इट इज़ एक्सेप्टेबल, अदरवाइज इट गॉट बी रिजेक्टेड। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें याद रखना पड़ेगा कि कितने ए आ चुके हैं, तभी हम उसको बी से कंपेयर करेंगे। दैट इज़ वाई इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, वी हैव टू क्रिएट अ PDA फॉर इट, and we'll be learning into the next class. For today, thank you very much. I hope you will be able to understand it. You go through it and will be clearing the doubt in the tomorrow's online class. Thank you so much.